ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपकर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 33 of the Sundarakandam, which has 31 verses. Keen to hear of Sita's identity from her own lips, even though he had identified her, Hanuman inquires of her whether she was a goddess or anyone else and asks her to disclose her identity in case she was Sita. In reply to this query, Sita narrates to him her whole life story, ending with her abduction by Ravana, and tells him how Ravana was going to kill her 2 months later, and how, in the event of her not being delivered from his clutches before that, she has resolved to end her life by herself. आज हम सुंदर कांड के 33 वर्ष खर्क का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 31 श्लोक हैं। सीता जी का हनुमान को अपना परिचय देते हुए अपने वन गमन और अपहरण का वृत्तांत बताना। सो अवतीर्य द्रुमात् तस्मात् विद्रुम अप्रतिमाननः विनीतवेषः कृपणः प्रीणपत्योपश्रुत्य च ताम् अब्रवीत् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यांजलिम् आदाय सीतां मधुरया गिरा। उधर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष के नीचे उतरकर माथे पर अंजलि बांध ली और विनीत भाव से दीनता पूर्वक निकट आकर प्रणाम करने के अनंतर सीता जी से मधुर वाणी में कहा, Slipping down from the aforesaid Shimshapa tree, bowing down and approaching Sita, nay, placing his folded hands on his head, Hanuman, son of the wind god, whose face resembled coral in hue, who was attired in a humble guise, was endowed with extraordinary energy and appeared distressed at the sight of Sita's sad plight, spoke to her as follows in gentle tones. Kanu Padmaphala Sakshi क्लिष्ट कौशेय वासिनी द्रुमस्य शाकमालम्ब्य तिष्ठसि त्वम् अनिन्दिते किमर्थं तव नेत्राभ्यां वारिस्रवति शोकजं पुण्डरीक पलाशाभ्यां विप्रकीर्णम् इवोदकम्। प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्र वाली देवी, ये मलिन रेशमी पीतांबर धारण किए आप कौन हैं? आनंदिते, इस वृक्ष की शाखा का सहारा लिए आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कमल के पत्तों से झरते हुए जल बिंदुओं के समान आपकी आंखों से ये शोक के आंसू क्यों गिर रहे हैं? Who are you, O irreproachable lady, with eyes resembling a lotus petal and clad in a worn silk garment, who stand holding a branch of this tree? Wherefore are tears born of grief trickling from your eyes like drops of water falling from a pair of lotus leaves? Suranam Asuranam cha Nagagandharva Rakshasam Yakshanam Kinnaranam cha Katvam Bhavasi Shobane Katvam Bhavasi Rudranam Marutam Va Varanane Vasunam Va Vararohe Devata Pratibhasit Me। शोभने, आप देवता, असुर, नाग, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर, रुद्र, मरुद्रन अथवा वसुओं में कौन है? इनमें से किसकी कन्या अथवा पत्नी है? सुमिखे वरारोहे, मुझे तो आप कोई देवता सी जान पड़ती है। Who are you among the gods and the demons, the nagas, the gandharvas and the ogres, the yakshas or the kinnaras, O charming one? Who are you among the 11 Rudras, the gods of destruction, the 49 wind gods and the 8 Vasus, O lady of exquisite features? For to me you appear to be a goddess, a lady of excellent limbs. Kimnu Chandramasa Hina Patitha Vibudad Layat Rohini Jyotisham Shrestha Shrestha Sarva Gunadika
क्या आप चंद्रमा से बिछुड़कर देवलोक से घिरी हुई नक्षत्रों में श्रेष्ठ और गुणों में सबसे बड़ी चढ़ी रोहिणी देवी हैं? Or are you Rohini, the foremost of lunar mansions and superior in all excellence, virtues, separated from the moon and fallen from heaven, the abode of the celestials? कोपात् वा यदि वा मोहात् भर्तारम् असि तीक्षणे वसिष्ठं कोपयित्वा त्वं वासि कल्याणि अरुन्धति। अथवा कजरारे नेत्र वाली देवी, आप कोप या मोह से अपने पति वशिष्ठ को कुपित करके यहाँ आई हुई है। कल्याण स्वरूपा सती शिरोमणि अरुंधति तो नहीं है? Or are you, O dark-eyed one, the blessed Arundhati, fallen from the heavenly world on having angered your husband, sage Vashishta, through resentment or error? को नु पुत्रः पिता भ्राता भर्ता वा ते सुमध्यमे अस्मात् लोकाद् अमुं लोकं गतं त्वम् अनुशोचसि। समुद्र में आपका पुत्र पिता भाई अथवा पति कौन इस लोक से चलकर परलोकवासी हो गया है जिसके लिए आप शोक करती हैं? Who is it, your son, father, brother, or husband, O lady, with slender waist, for whom, departed from this world to the other, you are grieving? रोदनादति निःश्वसात् भूमिस्पर्शनादपि न त्वां देवीम् अहं मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात्। व्यञ्जनानि हि ते यानि लक्षणानि च लक्ष्ये महिषी भूमिपालस्य राजकन्या च मे मथा। रोने, लंबी सांस खींचने तथा पृथ्वी का स्पर्श करने के कारण मैं आपको देवी नहीं मानता। आप बारंबार किसी राजा का नाम ले रही हैं तथा आपके चिन्ह और लक्षण जैसे दिखाई देते हैं, उन सब पर दृष्टिपात करने से यही अनुमान होता है कि आप किसी राजा की महारानी तथा किसी नरेश की कन्या हैं। From your crying, drawing deep and audible breaths, touching the ground and taking the name of a king, I do not consider you to be a goddess. Indeed, on the strength of the limbs of your body as well as on the marks of on your person, which I perceive, you are believed by me to be the consort of a ruler of the earth and the daughter of a king. रावणेन जनस्थानात् बलात् प्रमथिता यदि सीता त्वमसि भद्रं ते तन् ममाचक्ष्व पृच्छतः। रावण जन स्थान से जिन्हें बलपूर्वक घर लाया था, वह सीता जी ही यदि आप हों तो आपका कल्याण हो। आप ठीक ठाक मुझे बताइए, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। If you are Sita, stolen away forcibly by Ravana from Janasthana, kindly reveal it to me, who am inquisitive about it. May prosperity attend on you. यथा हि तव वै दैन्यं रूपं च अपि अतिमानुषं तपसा च अन्वितो वेशस्त्वं राममहिषी ध्रुवम्। दुख के कारण आप में जैसी दीनता आ गई है, जैसे आपका अलौकिक रूप है तथा जैसे तपस्विनी का वेश है, इन सब के द्वारा निश्चय ही आप श्री रामचंद्र जी की महारानी जान पड़ती हैं। Indeed, the sad plight, the ethereal beauty, and the garb marked with asceticism, the like of which are seen in you, lead me to conclude that you are undoubtedly the consort of Sri Rama. सा तस्य वचनं श्रुत्वा रामकीर्तनहर्षिता उवाच वाक्यं वैदेही हनुमन्तं द्रुमाश्रितम्। हनुमान जी की बात सुनकर विदेही नंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी की चर्चा से बहुत प्रसन्न थी। अतः वृक्ष का सहारा लिए खड़े हुए उन पवन कुमार से इस प्रकार बोली। Delighted at the mention of Sri Rama, on hearing the utterance of the monkey, that princess of Videhi territory spoke as follows to Hanuman, standing beneath the tree. पृथिव्यां राजहिंसानां मुख्यस्य विदितात्मनः स्नुषा दशरथस्याहं शत्रुसैन्यप्रणाशिनः दुहिता जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मनः सीतेति नाम्ना चोक्ताहं भार्या रामस्य धीमतः। कपिवर, जो भूमंडल के श्रेष्ठ राजाओं में प्रधान थे, जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि थी,
तथा जो शत्रुओं की सेना का संहार करने में समर्थ थे, उन महाराज दशरथ की मैं पुत्र वधु हूँ। विदेही राज महात्मा जनक की पुत्री हूँ और परम बुद्धिमान भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ। मेरा नाम सीता है। I am daughter-in-law of Dasharatha, the foremost of lions among kings on earth, who is a knower of the self and the exterminator of hostile forces. Nay, I am the daughter of the high-souled King Janaka, ruler of the Videhi territory, and the consort of the wise Sri Rama, and I am called by the name of Sita. समा 12 तत्राहं राघवस्य निवेशने कुञ्जाना मानुषान् भोगान् सर्वकाम समृद्धिनी। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी के अंतपुर में 12 वर्ष तक मैं सब प्रकार के मानवीय भोग भोगती रही और मेरी सारी अभिलाषाएं सदैव पूर्ण होती रही। Enjoying human luxuries and endowed with an abundance of all enjoyments, I dwelt in the well-known abode of Sri Rama, a scion of the Raghu, for 12 years. ततस्त्रयोदशे वर्षे राज्ये च इक्ष्वाकुनन्दनम् अभिषेचयितुं राजा सोपाध्यायः प्रचक्रमे। तदंतर 13वें वर्ष में महाराज दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ जी के साथ इक्ष्वाकु कुलभूषण भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ की। Then in the 13th year, the king with his preceptor sage Vashishta proceeded to install Sri Rama, the delight of the Ikshvakus, on the throne as prince regent. तस्मिन् सम्भ्रियमाणे तु राघवस्य अभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारमिदं वचनम् अब्रवीत्। जब वे श्री रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह कर रहे थे, उस समय उनकी केकई नाम वाली भार्या ने पति से इस प्रकार कहा। While preparations for the said installation as prince regent of Sri Rama, a scion of the Raghu, was being carried on, Kaikeyi, a stepmother of Sri Rama, they say, spoke as follows to her husband. न पिबेयं न खादेयं प्रत्यहं मम भोजनं येष मे जीवितस्य अन्ते रामो यदि अभिषिच्यते। अब ना तो मैं जलपान करूंगी, ना प्रतिदिन का भोजन ही ग्रहण करूंगी। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यही मेरे जीवन का अंत होगा। I shall no longer drink nor partake of my repast from day to day. Nay, this installation will prove to be the end of my existence if Rama is installed on the throne. यत् तदुक्तं त्वया वाक्यं प्रीत्या नृपति सत्तम तच्चेत् न वितथं कार्यं वनं गच्छतु राघवः। नृपश्रेष्ठ, अपने प्रसन्नता पूर्वक मुझे जो वचन दिए हैं उसे यदि असत्य नहीं करना है तो श्री राम वन को चले जाए। If that well-known pledge which was lovingly given by you, O jewel among the protectors of men, is not going to be dishonored, let Rama, a scion of the Raghu, proceed to the forest. स राजा सत्यवाग् देव्या वरदात् अनुस्मरन् मुमोह वचनं श्रुत्वा कैकेय्याः क्रूरम् अप्रियम्। महाराज दशरथ बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने कैकेयी देवी के 2 वर देने के लिए कहा था। उस वरदान का स्मरण करके कैकेयी ने क्रूर एवं अप्रिय वचन को सुनाकर वह मूर्छित हो गए। Recalling the dual boon granted by him long before in favor of the Queen Kaikeyi, the aforesaid king, who was true to his word, fainted on hearing the cruel and unpalatable demand of Kaikeyi. ततः तं तविरो राजा सत्यधर्मे व्यवस्थितः ज्येष्ठं यशस्विनं पुत्रं रुधन् राज्यम् अयाचत। तदंतर सत्य धर्म में स्थित हुए बूढ़े महाराज ने अपने यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र श्री रघुनाथ जी से भरत के लिए राज्य मांगा। Then, on regaining consciousness, the aged king, who stood firmly by the vow of truthfulness, begged the sovereignty of Ayodhya in favor of Bharata, of the aforesaid eldest and illustrious son, Sri Rama. स पितुः वचनं श्रीमान् अभिषेकात् परं प्रियं मनसा पूर्वमासाद्य वाचा
प्रतिगृहीतवान्। श्रीमान राम को पिता के वचन राज्याभिषेक से भी बढ़कर प्रिय थे, इसलिए उन्होंने पहले उन वचनों को मन से ग्रहण किया, फिर वाणी से भी स्वीकार कर लिया। Having bowed first with his mind to the command of his father, which was dearer to him than his own installation on the throne as Prince Regent, the glorious Sri Rama accepted it with his words. दत्यान् न प्रतिगृणीयात् सत्यं ब्रूयात् न च अनृतम् अपि जीवितहेतोर्हि रामः सत्यपराक्रमः। सत्य पराक्रमी भगवान श्री राम केवल देते हैं, लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं, अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी कभी झूठ नहीं बोल सकते। Sri Rama of unfailing prowess would only give and not accept gifts. He would speak the truth and never utter a falsehood even for his life. स विहायोस्तरीयाणि महार्हाणि महायशाः विसृज्य मनसा राज्यं जनन्यै मां समादिशत्। उन महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने बहुमूल्य उत्तरीय वस्त्र उतार दिए और मन से राज्य का त्याग करके मुझे अपनी माता के हवाले कर दिया। Casting off his costly upper garments and renouncing the kingdom with his mind, that highly illustrious prince gave me into his mother's keeping. साहं तस्याग्रतः तूर्णं प्रस्थिता वनचारिणी नहि मे तेन हीनाया वासः स्वर्गेऽपि रोचते। किंतु मैं तुरंत ही उनके आगे आगे वन की ओर चल दी, क्योंकि उनके बिना मुझे स्वर्ग में रहना अच्छा नहीं लगता। Resolved to range in the forest with my husband, I, however, immediately marched to the forest in front of him, for living apart from him, even in heaven, would not find favor with me. प्रागेव तु महाभागः सौमित्री मित्रनन्दनः पूर्वजस्य अनुयात्रार्थे कुशचीरैः अलङ्कृतः। अपने सुहृदय को आनंद देने वाले सुमित्रा कुमार महाभाग लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करने के लिए उनसे भी पहले कुश तथा चीर वस्त्र धारण करके तैयार हो गए। Clad in robes of kusha grass and tattered clothes, the highly fortunate Lakshmana, son of Sumitra, too, the delight of his friends, got ready to accompany his eldest brother even before me. ते वयं भर्तृरादेशं बहुमान्य दृढव्रताः प्रविष्टाः स्म पुरा दृष्टं वनं गंभीरदर्शनम्। इस प्रकार हम तीनों ने अपने स्वामी महाराज दशरथ की आज्ञा को अधिक आदर देकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए उस सघन वन में प्रवेश किया, जिसे पहले कभी नहीं देखा था। Highly respecting the command of our Lord and steadfast in our vows, we, the aforesaid three, penetrated deep into the forest, which had never been seen by us before and which was dreadful to look at. वसतो दण्डकारण्ये तस्याहम् अमितौजसः रक्षसा अपहृता भार्या रावणेन दुरात्मना। वहां दंडकारण्य में रहते समय उन अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की भार्या मुझ सीता को दुरात्मा राक्षस रावण यहाँ हर लाया है। The consort of the aforesaid prince, who is endowed with immense strength, I was borne away while the latter was sojourning in the Dandaka forest by that evil-minded ogre Ravana. द्वौ मासौ तेन मे कालो जीवितानुग्रहः कृतः ऊर्ध्वं द्वाभ्यां तु मासाभ्यां ततः त्यक्ष्यामि जीवितम्। उसने अनुग्रह पूर्वक मेरे जीवन धारण के लिए 2 मास की अवधि निश्चित कर दी है। इन 2 महीने के बाद मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। A period of 2 months has been allowed to me by him to live on sufferance. After the said 2 months, however, I shall give up the ghost. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 33 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ।
Thus ends Canto 33 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam भूयो भूयो नमाम्यहम्. धन्यवाद. धन्यवाद.